Hello students, this is lecture number 8 on topic structure of atoms and nuclei. In today's lecture, let us discuss about the phenomenon called as radioactivity. Normally क्या होता है, ये जो phenomenon है radioactivity, it depends upon the stability of nucleus. और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये वैल्यू कम है, मतलब जिनका atomic mass number below 56 and above 200. Normally these elements are unstable. So elements whose atomic number is greater than 82, right? Yeah, atomic mass number is greater than 200. Their nuclei spontaneously emit highly penetrating invisible radiation. That radiation consists alpha particles, beta particles, and gamma radiation. That phenomenon is called as radioactive disintegration, या decay, and that substance is called as radioactive substance या element. तो यहाँ से देखो, the process of spontaneous मतलब without any external means, या by itself. The process of spontaneous disintegration of nuclei of heavy elements with the emission of certain type of radiations is called as radioactivity. All heavy elements with atomic number above 82 show this phenomenon of radioactivity. This process cannot be initiated or stopped or accelerated by or retarded by changing chemical conditions change करो, physical conditions like pressure या temperature change करो. By making the changes in these parameter, ये process ना आप initiate कर सकते हो, ना stop कर सकते हो, ना accelerate कर सकते हो, ना retard कर सकते हो. So the process is called as spontaneous process without any external means. जो रेडिएशन इमिट होता है, दैट रेडिएशन कंसिस्ट अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल इज सिमिलर टू हेलियम न्यूक्लियस, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. बीटा पार्टिकल्स मतलब सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट द ओरिजिन इज न्यूक्लियस. आणि गॅमा रेडिएशन, these are a very high frequency photons, right? इसमें अगला टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन. नॉर्मली क्या होता है, जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता है या डीके होता है, द rate of disintegration becomes less and less sensitive with the time, because rate of disintegration with the time depends upon how many radioactive atoms, या how many radioactive nuclei remain undecayed या undisintegrated at that time. क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू बी डिसइंटीग्रेटेड ये धीरे धीरे कम होता है, एंड दैट इज व्हाई रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी धीरे धीरे कम होता है. ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल इन नेचर, जैसे अपने लिए भी अप्लाई कर सकते. जब अर्ली मॉर्निंग वी यूज टू वर्क, तो अर्ली मॉर्निंग अपना रेट ऑफ डूइंग द वर्क ज्यादा रहता है क्योंकि एनर्जी लेवल ज्यादा रहता है. बट पूरा दिन में एज वी कंटिन्यू टू डू द वर्क, रेट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अस गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि the rate of work done by us depends upon the energy level depend at that time. और हमें पता है कि with the time in a day धीरे धीरे एनर्जी लेवल कम होता है, तो रेट ऑफ डूइंग द वर्क भी धीरे धीरे कम हो जाता है. वही फॉर्मेट है. सी द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एनी इंस्टेंट यानी dN by dt
is directly proportional to number of atoms या न्यूक्लियर, ये 1:1 करस्पॉन्डेंस होता है। तो इन टर्म्स ऑफ एटम बोलोगे तो भी चलेगा, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर बोलोगे तो भी चलेगा। वापस पढ़ता हूँ। The rate of radioactive disintegration at any instant is directly proportional to the radioactive atoms या nuclei remain present, यानी remain undecayed at that instant। ये हमें प्रूव करना है कि जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ये एक्सपोनेंशियल इन नेचर होता है। ठीक है, सी फॉर एग्जांपल N0 डिनोट्स नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स या न्यूक्लिया, कोई भी एक वर्ड यूज करो, सेम। N0 with the number of radioactive atoms या nuclei present at time, मतलब at time t is equal to 0। Now disintegration continues। ये instant process नहीं होता है, ये spontaneous होता है। Let n be the number of radioactive atoms या nuclei present remain undecayed after time t। So in time dt, dn number of radioactive atoms are decayed, disintegrated। So according to the law, dn by dt is directly proportional to the number of atoms remain undecayed। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जैसे ही है। Rate of fall in temperature is directly proportional to the temperature at that instant। तो जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर कम होता है कूलिंग प्रोसेस में, वैसा रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर डी थीटा बाई डी टी भी कम हो जाता है। तो शुरू में वाटर का कूलिंग रेट बहुत फास्ट रहता है, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो हियर dn by dt is directly proportional to what? n। n is number of radioactive atom या nuclei remain undecayed। यहाँ माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो रेट है, इस रेट में as time increases and decreases, as time increases and decreases, that is indicated by negative sign। So dn by dt is equal to minus lambda n। यह लैम्बडा ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। This constant of proportionality is called as a decay constant या disintegration constant। Okay, let us prove that this equation concludes exponential nature। तो ये फार्मूला मैं वापस लिखता हूँ, dn by n is equal to lambda dt। इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dn by n is equal to minus lambda इंटीग्रेशन dt। ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log of x to the base e। वैसे ये हो गया log of n to the base e is equal to minus lambda t। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c कैरी होता है। This constant of integration c can be found by using the initial conditions। मतलब कैसे? When t was 0, जब ये t 0 था तब ये n कितना था? It was n0। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। When t is 0, n is n0। Substitute and use these conditions in equation 2। तो ये हो जाएगा log of n0 is equal to minus lambda into 0 plus c। तो c का वैल्यू आया log of n to the base e की जगह log of n0 to the base e। ये आ गया c का वैल्यू। Substitute this value in equation 2 here। तो equation 2 वापस कैसे लिखोगे? Log of n to the base e is equal to minus lambda t plus log of n0 to the base e। ये इधर लेके आओ, इधर। तो ये हो गया log of n minus log of n0 lambda t। यहाँ log का सब्ट्रैक्शन है तो ये जो नंबर्स है इनका रेशो रहेगा। तो log of n upon n0 to the base e।
तो ये हम लोग लिख सकते हैं, यू स्टडीड ऑलरेडी ये लॉग टेबल है, लॉ ऑफ इंडाइसेस। सो n अपॉन n0 ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा e रेज टू माइनस लैम्डा। तो ये फॉर्मूला मिला, n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। ये फॉर्मूला क्लियरली इंडिकेट करता है कि डिसइंटीग्रेशन जो होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का या एटम का या सब्सटेंस का, ये एक्सपोनेंशियल इन नेचर होता है। कैसे देखो, ये जो t है, when this t tends to zero होएगा, sorry this t tends to infinity होएगा, तभी ये n0 होएगा। जब ये t tends to infinity होगा तब ही ये n क्या होगा, 0 होगा। तो ये पार्ट क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विल डिसइंटीग्रेट कंप्लीट, राइट। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। ये देखो, above equation concludes that radioactive decay obeys the exponential law, n is equal to n0 e raised to minus lambda। ये एक्सपोनेंशियल लॉ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर में भी आता है, डिस्चार्ज ऑफ इंडक्टर में भी आता है, लॉ ऑफ कूलिंग में भी आता है। यहाँ देखो दूसरा कंक्लूजन, number of radioactive atoms vanish completely when time tends to infinity, राइट। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विल डीके कंप्लीटली। और अगला पार्ट, ये जो वैल्यू है डीके कांस्टेंट, जितना डीके कांस्टेंट ये बढ़ते जाएगा, जितना डीके कांस्टेंट ये बढ़ेगा, उतना रेट ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या होता है, हायर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क के लिए अच्छे से करना है। अभी हम लोग डीके कांस्टेंट डिफाइन करें। देखो फॉर्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके dn by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा n। मुझे लैम्बडा डिफाइन करना है, तो यहाँ लैम्बडा के लिए राइट हैंड साइड लिखो, लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस टाइम dn by dt अपॉन n। तो डीके कांस्टेंट मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे, it is the ratio of rate of disintegration to the number of radioactive atoms या nuclei remain undecayed. It is the ratio of rate of disintegration dn by dt to the number of radioactive atoms या nuclei remain undecayed. This ratio is called as decay constant. इसी में यहाँ से पढ़ता हूँ, the ratio of instantaneous rate, instantaneous मतलब at any time you define it, instantaneous rate of disintegration to the number of active nuclei, active nuclei मतलब remain undecayed, present in the radioactive sample at the given instant। जब ये define करें तभी, it's called decay constant, right? Okay. तो ये डीके कांस्टेंट खाली सब्सटेंस का नेचर पे डिपेंड करता है। उसका और एक डेफिनेशन है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कैसे देखो, n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। लेट अस डू द थिंग, ये जो t है इसका वैल्यू मैं 1 अपॉन लैम्बडा लेता हूँ। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। लेट मी पुट दिस टाइम 1 अपॉन लैम्बडा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस, e रेज टू माइनस। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू n0, ये इंडेक्स है निगेटिव तो डिनोमिनेटर पे चला जाएगा। e रेज टू 1 का वैल्यू कितना होता है, e रेज टू 1 का वैल्यू होता है 2.718, ये वैल्यू होता है। तो n इज इक्वल टू n0 अपॉन 2.718, इसका रेसिप्रोकल लो 0.3680। अगर परसेंटेज में बात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 36.8%। सो व्हाट इज n, 36.8%, या समटाइम्स यू कैन से नियरली 37% ऑफ ओरिजिनल एटम्स या न्यूक्लियर when remain undecayed, right? The time that has passed is called as what, decay constant। ये फॉर्मूला हमें कब मिला, जब हम लोगों ने
जब हम लोगों ने लैम्बडा का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट किया, 1/t, या t इज इक्वल टू 1/लैम्बडा, तो डीके कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे? Decay constant of radioactive substance is reciprocal of time interval during which the number of radioactive nuclei or atom of radioactive sample reduces to nearly 37% or reduces to nearly 1 by E times the initial value. ये देखो यहाँ 1 by E था ये वाला. So decay constant is what? It is the reciprocal of time, after which number of radioactive atoms या nuclei remain undecayed is 37% of its original value. मतलब खाली 37 बचेगा, तब जो टाइम पास हुआ उसका रेसिप्रोकल को बोला जाता है डीके कांस्टेंट. या दूसरा लैंग्वेज में बोल सकते हैं 63% is already decayed in a time. Reciprocal of that time is called decay constant. या ये n0/e भी ले सकते हैं, राइट? ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल. इसका एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल का मतलब क्या है? दिस इज द टाइम टेकन बाय रेडियोएक्टिव सैंपल टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट. क्योंकि एक टॉपिक था, देखो यहाँ पे n becomes 0 when t tends to infinity. मतलब every radioactive substance will decay completely when time becomes infinity. अगर ये स्टेटमेंट सब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है हर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का लाइफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कंप्लीटली कब डीके होगा? जब टाइम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा. तो इस स्टेटमेंट से वी कैनॉट डिफरेंशिएट द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस. मतलब एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दूसरे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से अलग कैसे, दैट कैनॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय दिस स्टेप. क्योंकि हर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को कंप्लीटली डीके होने के लिए कितना टाइम लगता है? इंफिनिटी. तो हमें लगेगा कि दे ऑल आर सेम इन ऑल aspects. That is why to differentiate them by scientists, concept of half-life period was introduced. तो half-life period का मतलब क्या है? हर सब्सटेंस को टू डीके 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जो टाइम लगता है वो अलग अलग आता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. दिस इज द प्रोसेस बाय इटसेल्फ. तो maybe time required to decay completely same हो, but time required to decay half of its original amount अलग अलग आता है. The concept of half-life period was introduced by a scientist to just differentiate one radioactive substance from the other radioactive substance. So making the use of half-life, one can study the radioactivity. So what is the meaning? It is a time taken by the radioactive substance to disintegrate half of its original amount. ये find out करते हैं. According to law, ये formula है n is equal to n0 e raised to minus lambda, where n0 is what? Number of atoms या nuclei present at start. What is n? Number of radioactive atoms या nuclei present undecayed after time t. T is that time. What is lambda? It is a decay constant. ठीक है. अभी हम लोग क्या करते हैं? T को T हाफ से डिनोट करते हैं और इसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं. So T is considered as T half when number of atoms remain undecayed. Number of atoms remain undecayed is what? N, जो n0/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि n0 क्या है? इनिशियल अमाउंट है. उसका आधा होने के लिए जो टाइम पास हुआ या द टाइम दैट हैज इलैप्स वो लेंगे हम लोग टी हाफ से डिनोट करेंगे. ये सफिक्स है 1/2, डिवाइड बाय 2 नहीं, सफिक्स है. सब्स्टिट्यूट ये n का वैल्यू n0/2 ले लो और ये स्मॉल t की जगह t
सफिक्स हाफ रिप्लेस, देखो मैंने यहाँ पे n0 अभी का कॉमन न्यूमरेटर कैंसिल कर दो, व्हाट इज रिमेनिंग 1/2 e raised to minus lambda t। ये नेगेटिव साइन मुझे ड्रॉप करना है तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, तो e raised to lambda t इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल अगर साइन निकालना हो तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम ये आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस e। ये आपने लॉगरिथम में पढ़ा, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2। अगर मुझे log टू द बेस 10 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 log टू द बेस 10 हो जाएगा, लैम्ब्डा t 2.303 और log टू द बेस 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0 और इसका मैंटिस आएगा 301। प्रोडक्ट ले लो तो ये आ जाएगा t हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन लैम्ब्डा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। इस फॉर्मूला से आप क्लियर कंक्लूड कर सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डीके कांस्टेंट। It depends upon decay constant, is inversely proportional to decay constant या कॉन्वर्स टॉक भी कर सकते हैं, decay constant is inversely proportional to half life period। और यहाँ पे देखो n या n0 कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम या न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट स्टार्ट, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, राइट। और ये फॉर्मूला से ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, the value of half-life of radioisotope gives an idea of relative stability। मतलब हर न्यूक्लियाई के आइसोटोप्स होते हैं, तो आप आइसोटोप टू आइसोटोप भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी। ये ग्राफिकली भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो ग्राफ प्लॉट किया है, इन अ ग्राफ y axis is representing number of radioactive atoms and x axis is representing the time। जब टाइम 0 था मतलब x कोऑर्डिनेट 0 था तो y कोऑर्डिनेट n0 था। जब टाइम कोऑर्डिनेट 0 था मतलब स्टार्ट, ये कितना था, n कोऑर्डिनेट n0 था, राइट। तो ये जो सेंटर्स मतलब ओरिजिन से लेकर n0 तक, ये जो y एक्सिस का सेगमेंट है ये वाला, ये आधे पे आ गया n0/2। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये जो टाइम पास हुआ ये हो जाएगा पहला हाफ लाइफ पीरियड। ये देखो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक n0 तक, ये है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एटम या न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो ये जो सेगमेंट का लेंथ आधा होगा, मतलब हाफ द रेडियो एक्टिव सैंपल गेट डीकेड या डिसइंटीग्रेटेड, n0/2 हो जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट जो रहेगा ये रहेगा पहला हाफ लाइफ। अभी ये n0/2 है, इसका आधा हो जाएगा n0/4, तो व्हाट टाइम हैज पास, ये आ जाएगा 2 हाफ लाइफ। देखो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट सेम, ये आधा हो जाएगा। फिर n0/4 का आधा होने के लिए मतलब n0/8 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वापस ऐसे, तो तीसरा हाफ लाइफ होगा। तो देखो आप टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ तो सेम जा रहा है, लेकिन अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दिस इज हाउ disintegration is what, exponential in nature। Okay, in the next lecture we will continue the same content। Thank you।